अच्छा बेटा, you remember in last class we discussed that how and why complexes give color. So I want to make some correction of a thing which we studied in last class. So the correction is, but if this is energy axis, this is energy axis, and these are degenerate orbitals of d subshell 1, 2, 3, 4, and 5. This is dxy, this is dyz, this is dzx, this is dx square y square, and this is dz square. So these are the 5 orbitals, okay? Acha. So ye the d subshell splits, and this is known as dd splitting. If dd splitting is happening like this, dx square y square and dz square, अगर ये dx square y square और dz square नीचे हैं, लो एनर्जी पे हैं, and we have dxy, dyz, and dzx here at high energy level. So beta, such type of splitting will lead to the formation of tetrahedral complex. A tetrahedral complex will form. Okay? Kindly keep in your mind, correct your notes, that this kind of splitting will lead to the formation of tetrahedral complex. Okay? Not square planar. लास्ट क्लास में बाय मिस्टेक आई सेड कि इस तरह की स्प्लिटिंग से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा, विच इज नॉट द केस. अगर ऐसी स्प्लिटिंग हुई कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जी स्क्वायर लो एनर्जी स्टेट पे हैं, और ये डी एक्स वाई वाई जी एंड जी एक्स हाई एनर्जी स्टेट में, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स विल फॉर्म. काइंडली करेक्ट योर नोट्स एज वेल. इज दिस क्लियर बेटा? This kind Yes, of DD splitting will lead to the formation of tetrahedral complex. Okay. और the other one was as it is. दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि if the splitting is like this, 1, 2, 3, 4, and 5, and this is energy axis, and if the splitting is happening like this, okay, you have dxy, yz, and zx, dxy, yz, and dzx here at low energy state, and dx square, y square, and dz square at high energy state. Now octahedral complex will form. Octahedral complex will form in this case. ये this concept is as it is, लेकिन जो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है वो काइंडली आप करेक्ट कर लें. लास्ट क्लास में हमने इस तरह की स्प्लिटिंग को स्क्वायर प्लेनर बाय मिस्टेक मैंने बताया था, विच इज नॉट द स्क्वायर प्लेनर, इट वुड बी टेट्राहेड्रल. ओके? अगर इस तरह की स्प्लिटिंग होती है, इस तरह की स्प्लिटिंग होगी तो द कॉम्प्लेक्स विल बी टेट्राहेड्रल. ठीक है? ओके. एनी क्वेश्चन बेटा? once again beta, just look, this is 5 orbitals of d subshell 1, 2, 3, 4, and 5. This is dxy, dyz, dzx, dx square, y square, and then dz square. तो स्प्लिटिंग की दो पॉसिबिलिटीज हैं.
It's very much possible that splitting happens like this. अब बेटा बताओ, अगर स्प्लिटिंग ऐसे हो रही है, dx square y square and dz square, dxy, dyz and dzx, or alternatively, if the splitting is happening like this, dxy, dyz and dzx, जी बेटा बताएं तो कौन सा कॉम्प्लेक्स किस स्प्लिटिंग से बनेगा? सर राइट वाला टेट्राहेड्रल होगा और लेफ्ट वाला ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, राइट वाला विल बी टेट्राहेड्रल. You need to memorize this, okay? And left wala will be octahedral. Okay? So this was some correction. And now better today's concept, which will lead us to the end of this topic. This topic will be ended today with this concept. And the concept is stability constant. Stability constant or K stab. K stab or stability constant. K stab or stability constant will be used for ligand exchange reactions. Okay, you have to use this K stab for complex stability and ligand exchange reactions and ligand exchange reactions. अच्छा बेटा, जो K स्टैप की न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बताएगी. ये जो K स्टैप है ये यूज हम करते हैं कॉम्प्लेक्स के लिए भी और रिएक्शन के लिए भी. K स्टैप को हम रिलेट करेंगे कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी से. कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी का मतलब है कि अगर K स्टैप की न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है, K स्टैप की न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है तो दैट कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल. अगर K स्टैप की न्यूमेरिकल वैल्यू कम है तो दैट कॉम्प्लेक्स इज लेस स्टेबल. एक तो कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी इन्वॉल्व है K स्टैप की न्यूमेरिकल वैल्यू से, और दूसरा K स्टैप इज आल्सो इन्वॉल्व विद लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन. लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन. अगर K स्टैप की न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है तो इक्विलिब्रियम विल बी मोर टुवर्ड्स द राइट. अगर K स्टैप की न्यूमेरिकल वैल्यू कम है तो फिर इक्विलिब्रियम विल बी मोर टुवर्ड्स द लेफ्ट. एक मिनट, अभी मैं एग्जांपल देता हूं तो ये समझ आएगी. देखो, मैं सपोज करता हूं दो रिएक्शंस. ठीक है, ये दो रिएक्शंस हैं. लेट्स से कि ये कोबाल्ट है, दिस इज NH3 whole taken 6 dye positive, plus suppose the ligands I'm taking is CN. This is cobalt, this is CN6 dye positive. This is ligand exchange reaction. ठीक है. अच्छा, on the other hand I'm taking another ligand substitution. Let's say I have taken these two ligand exchange reactions. But it will be -4, okay? Charge here is -4, charge here is -4, 6 ammonia. Acha, you are not supposed to memorize these reactions, okay? These reactions will be given to you.
और इनकी ये केस टाइप वैल्यूज गिवन होंगी। सपोज इस कॉम्प्लेक्स की केस टाइप वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻²। तो दूसरा लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन है, उसकी केस टाइप वैल्यू 1.7 इंटू 10⁻14। अच्छा बेटा बताओ कौन सी केस टाइप वैल्यू ग्रेटर है? सेकंड वाली। सेकंड वाली ग्रेटर है। अच्छा, जब सेकंड वाली केस टाइप वैल्यू ग्रेटर है, इसका मतलब है कि जो सेकंड वाला रिएक्शन है उसमें इक्विलिब्रियम इज मोर टुवर्ड्स द राइट। जो सेकंड वाला रिएक्शन है उसमें इक्विलिब्रियम विल बी मोर टुवर्ड्स द राइट। इसका मतलब है कि आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है और ये ऊपर वाले रिएक्शन में ये कॉम्प्लेक्स है, तो दिस कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल, क्योंकि ये केस टाइप वैल्यू ग्रेटर है। जो केस टाइप वैल्यू ग्रेटर होगी उस रिएक्शन का प्रोडक्ट वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा, और जिस रिएक्शन में केस टाइप की वैल्यू स्मॉल होगी उस रिएक्शन में रिएक्टेंट वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ये सपोज अगर मैं इसको -2 ले लूं तो अब केस टाइप वैल्यू ऊपर वाले रिएक्शन में स्मॉल हो गई है। ये केस टाइप वैल्यू स्मॉलर है, 10⁻⁻² है, और ये वाली केस टाइप वैल्यू ग्रेटर है। तो जो नीचे वाले रिएक्शन में प्रोडक्ट वाला कॉम्प्लेक्स है ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसकी करस्पॉन्डिंग केस टाइप वैल्यू ज्यादा है, और ये वाला कॉम्प्लेक्स लेस स्टेबल है क्योंकि करस्पॉन्डिंग केस टाइप वैल्यू कम है। लेकिन ऊपर वाले रिएक्शन में रिएक्टेंट वाला कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल बिकॉज केस टाइप वैल्यू इज स्मॉलर, और प्रोडक्ट वाला कॉम्प्लेक्स इज लेस स्टेबल। समझ आई बेटा? सर ये हम इन दोनों को कंपेयर करके चेक करेंगे या कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू है जिसके अगेंस्ट चेक करेंगे? नहीं नहीं, कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है। अगर ये इन कंपैरिजन आपको मोस्टली बताया जाएगा, तो जहां केस टाइप वैल्यू ज्यादा होगी उस रिएक्शन के प्रोडक्ट के कॉम्प्लेक्स को ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। केस टाइप को दो तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। केस टाइप डायरेक्टली किसी कॉम्प्लेक्स के लिए भी दे सकते हैं, और केस टाइप की न्यूमेरिकल वैल्यू किसी रिएक्शन के लिए भी दे सकते हैं। तो अगर रिएक्शंस के लिए दे रहे हैं तो जिसकी केस टाइप वैल्यू ज्यादा है वहां इक्विलिब्रियम राइट पे शिफ्ट होगा, यानी ग्रेटर केस टाइप वाले का प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा। और ये क्वेश्चन यूं भी दे सकते हैं आपको, टू कॉम्प्लेक्सेस गिवन हो विद देयर केस टाइप वैल्यूज। ये क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता, दो कॉम्प्लेक्सेस हों, लेट्स से ये वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स है, one of the complex is like this, or the other complex is like this. अच्छा, और आपको ये वैल्यू दे दी जाए कि इसकी वैल्यू है 3.2 इंटू 10⁻⁴, और ये वाला है 1.2 इंटू 10⁻⁻1, और फिर पूछा जाए कि विच कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल, तो विच कॉम्प्लेक्स विल बी स्टेबल बेटा? सर 3.2 इंटू 10⁻⁴। हाँ, ये जिसकी केस टाइप वैल्यू ग्रेटर होगी दैट कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो बेटा कॉन्सेप्ट क्या बना? एक कॉन्सेप्ट ये बना कि इफ केस टाइप वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इज ग्रेटर of a complex is greater than
that complex will be stable and vice versa. ठीक है, के स्टेप वैल्यू ग्रेटर होगी किसी कॉम्प्लेक्स की तो वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा. सेकंड कॉन्सेप्ट ये है कि इफ के स्टेप वैल्यू ऑफ अ रिएक्शन इज ग्रेटर, के स्टेप वैल्यू of a reaction is greater, तो फिर क्या होगा, then equilibrium will be more towards right in that reaction, और प्रोडक्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स विल बी मोर स्टेबल. अगर के स्टेप की वैल्यू ज्यादा है तो उस रिएक्शन का प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा. प्रोडक्ट ऑफ दैट रिएक्शन इज मोर स्टेबल एंड वाइस वर्सा. ठीक है बेटा, एनी क्वेश्चन बेटा? नो सर. नो क्वेश्चन. देखो अब ये इस एग्जाम्पल को इंटरप्रेट करो. इस एग्जाम्पल को इंटरप्रेट करो बेटा कि अगर ये गिवन हो कोबाल्ट NH3 6 डायपॉजिटिव प्लस 6 H2O, और ये है कोबाल्ट. बेटा आपको इनके कलर्स पता है? यू नो द कलर्स? इन कॉम्प्लेक्सेस के यू नो? ओके, यस बेटा, यू नो द कलर्स. ये आपके सिलेबस बेस्ड कलर्स हैं, ये मैंने पढ़ाया था. ये मैंने पढ़ाया था, यू नो द लेसन बिफोर दिस. ये जो कोबाल्ट का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स होगा ये ब्राउन सोल्यूशन फॉर्म करेगा. ये कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट का वाटर के साथ जो कॉम्प्लेक्स होगा ये पिंक सोल्यूशन डेवलप करेगा. कोबाल्ट का क्लोरोलिगेंड्स के साथ जो कॉम्प्लेक्स होगा ये ब्लू सोल्यूशन डेवलप करेगा. अच्छा बेटा, अगर के स्टेप वैल्यूज गिवन हो लाइक दिस 1.2 into 10 to the power 4, 3.7 into 10 to the power 14, तो अब इन कॉम्प्लेक्सेस में विच कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल? लेट अस से कि ये कॉम्प्लेक्स ए है, ये कॉम्प्लेक्स बी है, ये कॉम्प्लेक्स सी है. तो फ्रॉम ए बी एंड सी, फ्रॉम ए बी एंड सी, विच वन इज मोर स्टेबल? सर बी है. शाबाश, बी इज मोर स्टेबल. व्हाई? सर क्योंकि उसकी के स्टेप की वैल्यू ज्यादा है. हाँ, करस्पॉन्डिंग के स्टेप वैल्यू ज्यादा है. ठीक है, तो अब देखें करस्पॉन्डिंग के स्टेप वैल्यू जिस कॉम्प्लेक्स की ग्रेटर होगी वो दैट कॉम्प्लेक्स विल बी मोर स्टेबल. सो बी इज मोर स्टेबल as corresponding K stab value is greater. K stab is greater. ठीक है, अच्छा अब बेटा के स्टैब एक्सप्रेशन को लिखना सीखना है, समझना है कि हाउ टू राइट के स्टैब एक्सप्रेशन. तो वो एग्जैक्टली द सेम वे है के स्टैब एक्सप्रेशन. के स्टैब एक्सप्रेशन में आपने वाटर को इन्वॉल्व नहीं करना, बाकी आप सब इन्वॉल्व कर सकते हैं. डू नॉट इन्वॉल्व वाटर.
do not involve H2O in expression. Okay, for example, if this is ligand exchange reaction, and it produces this complex plus 6 ammonia ligands are displaced. So beta, how to write K-stab expression? उसी तरह आपने लिखना है concentration of products divided by concentration of reactants but do not involve water. तो product side पे बेटा you have ये एक one of the bracket is for concentration और जो दूसरी bracket है that is for complex. One of the square bracket is for concentration and the other square bracket is for complex. तो चूंकि इसका एक मोल है तो एक्सपोनेंट विल बी 1 हियर. तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन will be written in numerator raised to the power 6 और रिएक्टेंट की बेटा कॉन्सेंट्रेशन विल बी रिटन इन डिनोमिनेटर. तो रिएक्टेंट्स में यू हैव वाटर, डू नॉट इन्वॉल्व दिस वाटर, ओनली इन्वॉल्व दिस कॉम्प्लेक्स. सो कॉम्प्लेक्स में यू हैव कोबाल्ट अमोनिया कॉम्प्लेक्स है डाई पॉजिटिव, यहां भी एक्सपोनेंट 1 होगा. So this will be 1 mark question for K-stab expression. अच्छा बेटा, अब इसकी यूनिट क्या होगी? How will you write the unit? तो यूनिट में देखिए मोल पर डीएम क्यूब into मोल पर डीएम क्यूब raised to the power 6 divided by मोल पर डीएम क्यूब. ठीक है, और कैंसिलेशन करें. जब कैंसिलेशन करें तो फाइनल यूनिट विल बी मोल रेज टू द पावर 6 dm minus 18 is the unit. ठीक है, I hope you would be able to write K-stab expression with its units. Any question beta? No sir. अच्छा, so अब बेटा let me discuss the same concept in questions. So the questions are like this. अच्छा बेटा देखें, ये this is part E and this is ligand exchange reaction. Okay, this is reaction, ये reaction है. How should I write K-stab expression? So K-stab expression में do not involve product, sorry, do not involve water, do not involve water. तो water को involve ना करें and do involve this product as numerator. So you have copper, ammonia ligands are 4, water ligands are 2, whole die positive, square bracket. एक स्क्वायर ब्रैकेट कॉन्सेंट्रेशन की है और एक कॉम्प्लेक्स की है और डिवाइडेड बाय Cu H2O 6 डाई पॉजिटिव और ammonia raised to the power 4 because you have 4 moles of ammonia here. ठीक है, this is K-stab expression. And what about units बेटा? क्या आप बता सकते हो यूनिट क्या होगी? यूनिट क्या होगी बेटा इस केस में? यस बेटा, मोल पर डीएम क्यूब ऊपर है और नीचे यू विल हैव मोल पर डीएम क्यूब इनटू मोल पर डीएम क्यूब रेज टू द पावर 4. तो दिस इज कैंसल विद दिस वन, सो यू विल हैव मोल रेज टू द पावर -4 dm 12. ठीक है, अच्छा बेटा, नाउ व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट? The numerical value of K-stab
is this much, 10 to the power 13, which is very large value, okay? 10 to the power 13 is large numerical value. Explain how this value relates to the relative stability of the two complexes. बेटा ये जो two complexes हैं, one of the complex is on the left, one of the complex is on the right. एक कॉम्प्लेक्स ये है लेफ्ट पे, एक कॉम्प्लेक्स ये है राइट पे, और के स्टार वैल्यू है 1.2 इंटू 10 टू द पावर 13। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, लेफ्ट वाला या राइट वाला? राइट वाला। राइट वाला। क्यों? क्योंकि केस टाइप की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है। तो यू विल से कि कॉम्प्लेक्स ऑन द राइट is more stable as greater वैल्यू है केस टाइप की। ठीक है? एनी क्वेश्चन? नो सर। Okay, what about this one? Now you have to write case tab expression, okay, for the reaction above. So don't involve water. It is nickel, ammonia, 6 dipositive. ये one of the complex है और इसकी concentration like this. And the reactants here in denominator, so nickel, hexa, aqua, and it's dipositive, and then ammonia raised to the power 6. ठीक है? इधर यूनिट का नहीं कहा, अगर यूनिट का पूछते तो देन आपने यूनिट भी कैलकुलेट करनी थी। तो केस टाइप एक्सप्रेशन लिखा विच इज प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। ना बेटा दिस सेकंड पार्ट, यस बेटा इसको रीड करें सेकंड पार्ट को, दैट दिस वेरी कॉम्प्लेक्स निकल एक्वा हेक्सा एक्वा 6 वाटर लिगेंड्स का निकल के साथ कॉम्प्लेक्स आल्सो रिएक्ट्स विद EN. EN is bidentate ligand to form this thing. ठीक है? तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स बनता है इसकी केस टाइप वैल्यू 10 टू द पावर 18 है, और ये अमोनिया लिगेंड्स वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसकी केस टाइप वैल्यू 10 टू द पावर 7 है। तो अ सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया एंड EN एडेड टू दिस, ये आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें ये कॉम्प्लेक्स है, ये आपके पास सॉल्यूशन है जिसमें ये कॉम्प्लेक्स है, उसमें आप EN भी ऐड करते हो और उसमें आप अमोनिया भी ऐड करते हो। तो विच कॉम्प्लेक्स इज प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट, कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा लार्ज अमाउंट में? जी बेटा। सर EN होगा। हाँ EN वाला, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये लार्ज अमाउंट में बनेगा। क्यों? NiEN3 dipositive will form in large amount, क्योंकि ये बिकॉज दिस कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल। क्यों स्टेबल है? इसकी केस टाइप वैल्यू ग्रेटर है, बिकॉज दिस कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल। क्यों स्टेबल है? ग्रेटर केस टाइप वैल्यू है। ठीक है बेटा? एनी क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, देन बेटा ये क्वेश्चन अब आप लोग आंसर करें।
यस बेटा, इस क्वेश्चन को आंसर करें। ये देखो, ये वन ऑफ द रिएक्शन है। इसमें ये वॉयलेट से कलरलेस हो रहा है। ये लेफ्ट, ये जो कॉम्प्लेक्स है लेफ्ट वाला, इसको अगर मैं ए बोलूं तो ए इज वॉयलेट, इसको मैं बी बोलूं तो बी इज कलरलेस। ओके, स्टेप वैल्यू 10⁵ है। और फिर ये कॉम्प्लेक्स वंस अगेन ए है जो कि वॉयलेट है। और सपोज, मैं सिर्फ सपोज सी कह रहा हूं, तो सी कॉम्प्लेक्स सी की वजह से डीप रेड सोल्यूशन बन रहा। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 10⁵ है। अब ए बी और सी में कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है सबसे ज्यादा? बी। बी सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि बी की के स्टेप वैल्यू ज्यादा है। अच्छा, आप जरा ये क्वेश्चन पढ़ें कि फ्यू ड्रॉप्स ऑफ के एस सी एन, ये के एस सी एन विल प्रोड्यूस एस सी एन लिगेंड। ठीक है। अच्छा, तो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ के एस सी एन ऐड किया है आयरन 3 एक्वस। आयरन 3 एक्वस इज दिस थिंग, ओके, ए। आयरन 3 एक्वस इज ए, फॉलोड बाय फ्यू ड्रॉप्स ऑफ के एफ। तो के एफ जो है वो फ्लोराइड डेवलप करेगा। ऑब्जर्वेशन आपकी क्या होनी चाहिए? ऑब्जर्वेशन क्या होनी चाहिए? प्रेडिक्ट करना है और एक्सप्लेन करना है सीक्वेंस ऑफ कलर चेंज। कलर चेंज आपने बताना। तो बेटा, क्या मैं लिख सकता हूं कि पहले ये होगा वॉयलेट टू डीप रेड, क्योंकि शुरू में आपने सिर्फ ये ऐड किया है एस सी एन, और एस सी एन यहां इन्वॉल्व है। तो शुरू में आप ये ऑब्जर्वेशन देखोगे, वॉयलेट टू डीप रेड, एंड देन उसके बाद आपने जब फ्लोराइड ऐड करेंगे तो फ्लोराइड एडिशन से ये वाला बी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बी ज्यादा स्टेबल है। एंड देन डीप रेड टू कलरलेस। ये बेटा समझ में आई? जी सर। शुरू शुरू में आपने एस सी एन ऐड किया, तो ये वाला नीचे वाला रिएक्शन टेक प्लेस करेगा, तो डीप रेड सोल्यूशन बन जाएगा। उसके बाद आपने फ्लोराइड ऐड किए। जब फ्लोराइड ऐड किए तो मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स इज बी, क्योंकि उसकी के स्टेप वैल्यू ज्यादा है। ठीक है। और एक्सप्लेन में बेटा आप ये बोलोगे कि ये लेस स्टेबल और मोर स्टेबल, इनको सीक्वेंस कर दो। तो लेस स्टेबल आपके पास ये वाला कॉम्प्लेक्स है, Fe H2O6 ट्राई पॉजिटिव। अच्छा, उसके बाद मोर स्टेबल में ये आ रहा है FeH2O5SCN इस डाई पॉजिटिव। और सबसे ज्यादा जो स्टेबल है वो ये कॉम्प्लेक्स है, FeH2O5F 2+। ठीक है। अच्छा बेटा, सेकंड पार्ट में क्या होगा कि few drops of KF are added first and then few drops of KCN। पहले फ्लोराइड आप ऐड कर दें और फिर KSCN ऐड कर दें। जी बेटा, सर क्या पहले कलर वॉयलेट चेंज से होगा? कलर, पहले वॉयलेट टू कलरलेस कलरलेस। हाँ। और और फिर वो फिर डीप रेड हो जाएगा। नहीं, एंड स्टेज कलरलेस। क्यों? स्टेबल है। कलरलेस से ये, स्टेबल है सर हाँ इसलिए। हाँ, कलरलेस से ये डीप रेड पे नहीं जाएगा। जब कलरलेस हो जाएगा तो स्टे कलरलेस, क्योंकि ये जो कलरलेस वाला कॉम्प्लेक्स है ये ज्यादा स्टेबल है। तो 10⁵ ग्रेटर है 10⁵ से।
ठीक है, तो वॉयलेट टू कलरलेस जाएगा, लेकिन फिर वो कलरलेस ही रहेगा, क्योंकि कलरलेस वाला करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, अच्छा, ओके। तो बेटा ये कैसे करेंगे? आपने दो केस स्टैप कंस्ट्रक्ट करने हैं। केस स्टैप वन, केस स्टैप वन विल बी FeSCN dipositive divided by Fe tripositive और फिर SCN। ठीक है, ये केस स्टैप वन होगा। केस स्टैप टू क्या होगा? FeCl4 नेगेटिव, फिर Fe ट्राइपॉजिटिव, रिएक्टेंट्स को आपने डिनोमिनेटर में लिखना है, और ये क्लोराइड रेज टू द पावर 4। आई होप यू विल बी एबल टू राइट द यूनिट्स। मैं सिर्फ ये आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये अब कैसे करना आपने। अब ये पार्ट टू कह रहे हैं कि दिस इज एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन। ओके, दिस इज इक्विलिब्रियम 3 है। तो ये वाला जो रिएक्शन है इसका कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम 3 है। तो राइट एन एक्सप्रेशन फॉर के इक्विलिब्रियम 3 इन टर्म्स ऑफ के स्टेप 1 एंड के स्टेप 2। ये के इक्विलिब्रियम 3 को हमने वी हैव टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ के स्टेप 1 एंड के स्टेप 2। हाउ शुड वी राइट इट? एक मिनट, थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर दूं इसको के ऊपर आप रिएक्शंस देख सको। बेटा ये वाला जो रिएक्शन है इसका के इक्विलिब्रियम 3 वो कैसे आप लिख सकते हो? हाउ टू राइट दैट? हाउ शुड आई राइट K equilibrium 3 expression? It will be like this: FeSCN dipositive और क्लोरोलिगेंट्स यानी प्रोडक्ट्स इन न्यूमरेटर, reactants in denominator, FeCl4 negative and SCN। ठीक है, अब इसको चेक करो और इसको इनको हम क्या करें कि यू गेट दिस एक्सप्रेशन। ये लेफ्ट वाले एक्सप्रेशन से हमने ये राइट वाला एक्सप्रेशन कैसे बन सकता? आप देखें इस राइट वाले एक्सप्रेशन में आयरन 3 एब्सेंट है, तो यू हैव टू कैंसिल आयरन 3। सर पहले वाले एक्सप्रेशन को दूसरे से डिवाइड कर दें। हाँ, पहले वाला एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय दूसरा वाला एक्सप्रेशन, यानी के स्टेप 1 डिवाइडेड बाय के स्टेप 2। जब पहले और दूसरे एक्सप्रेशन को आप डिवाइड करोगे तो क्या क्या चीजें कैंसिल होंगी? आयरन 3 कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन ये वाला बनेगा। आई होप बेटा समझ आ रही है। जिन बच्चों जी को नहीं सर। आ रही समझ वो बताएं। जिन बच्चों को समझ नहीं आ रही वो बताएं। ये के इक्विलिब्रियम 3 विल बी इक्वल टू के स्टेप 1 डिवाइड बाय के स्टेप 2। देखो के स्टेप 1 इज लाइक दिस, ये FeSCN dipositive डिवाइड बाय आयरन 3 और SCN नेगेटिव, ये के स्टेप 1 है। और डिवाइडेड बाय तो यानी उसको रेसिप्रोकेट कर लें, दूसरे वाले को रेसिप्रोकेट कर लें तो यू गेट आयरन 3। रेसिप्रोकेट करने से डिवाइड हो जाएगा ये क्लोराइड रेज टू द पावर 4 है, एंड FeCl4 नेगेटिव। तो अब देखिए कैंसिलेशन होगी, आयरन 3 और आयरन 3 कैंसिल हो जाएगा। वट एवर यू गेट इज दिस वन। समझ आ रही है बेटा?
वर्कशीट विल बी शेयर्ड इंशाल्लाह टुडे, तो आप फिर कर लेना। तो आप देखो ये आप के स्टेप 1 और के स्टेप 2 की वैल्यूज गिवन है, तो उससे के इक्विलिब्रियम 3 की वैल्यू आपने प्रोड्यूस करनी है। तो यू विल डू इट लाइक दिस, 1.4 into 10 to the power 2 divided by 8.0 into 10 to the power minus 2। ठीक है, और जहां तक ये यूनिट्स पूछ रहे हैं तो यूनिट्स देख लें, इधर से इधर से इधर से और इधर से यूनिट खुद डेवलप कर लें। ठीक है, एनी क्वेश्चन बेटा? नो सर। अच्छा ना बेटा, बस मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि इस बेटा ये देखें, दिस पार्ट बी। ओके, तो देखो ये डी एक्स वाई है, फिर डी वाई जी है, फिर डी जी एक्स है, फिर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, फिर डी जी स्क्वायर है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग कैसे होनी चाहिए, स्प्लिटिंग का आपसे पूछ रहे हैं। सर डी एक्स वाई टेट्राहेड्रल वाले जो, कॉम्प्लेक्स, हाँ, डी एक्स वाई वालों का वो होना चाहिए एनर्जी लेवल राइज। हाँ ठीक है, ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर है इसको नीचे होना चाहिए, और डी एक्स वाई, डी वाई जी और डी जी एक्स इसको ऊपर होना चाहिए, देन यू विल गेट 1 out of 1। ठीक है बेटा, दैट इज व्हाट वी हैव फॉर टुडे।